علیکم بچوں، آج ہم نویم جماعت میں ایک نیا نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہماری نظم کا نام ہے نظم نمبر 6 اقتا کی آواز، جس کے شاعر ہے بیکل اسائی۔ اگر اس چینل پہ آپ نئے ہو تو میرے چینل کو ضرور شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تو بچوں، آج کی جو ہماری نظم کافی دلچسپی ہے۔ نویں جماعت میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں نظم نمبر 6 اقتا کی آواز، جس کے شاعر ہے بیکل اسائی، جنہوں نے اس نظم کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ آئیے اس نظم کی پہلی بات پر ہم نظر ڈالیں گے۔ پہلی بات، ہمارے وطن کی اہم خوبی ہے کہ یہاں کثرت میں وحدت یعنی انیکتا میں ایکتا پائی جاتی ہے۔ یہاں الگ الگ قسم کے لوگ رہتے ہیں جو رنگ، نسل، مذہب، زبان، ذات پات کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اتنے بڑے ملک میں مختلف قومیں مل جل کر رہتی ہے۔ ذیل کی نظم میں بتایا گیا ہے کہ اپنے ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپسی اتحاد کو قائم رکھیں، قومیت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں، اسے فروغ دیں۔ جیسے بچوں، ہم ہندوستان ملک سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے ہندوستان ملک میں ہر مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہے، مسلم، سکھ، عیسائی، جین ہو گیا، بدھزم ہو گیا، ہر مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا ہے۔ جیسے مسلمان جیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو ہندو رہتے ہیں ان کے شنکر رام ایسے بھگوان ہوتے، دیوی وغیرہ دیوتا کی عبادت کرتے۔ جیسے جو 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 کرسچن ہوتے ہیں، جیسے جو عیسائی مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ جیزس عیسیٰ علیہ السلام کی کو اپنا بھگوان مانتے ہیں۔ مطلب طرح طرح کے مذہب، طرح طرح کی زبانیں بولی جاتی، جیسے اردو، ہندی، مراٹھی، گجراتی، مارواڑی، تمل، تیلگو، طرح طرح کی زبانیں بھی بولی جاتی، لیکن ان کا رہن سہن، کھانا پینا بالکل مختلف ہے۔ تو شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں ایسا ہمیں فرق نہیں دکھانا ہے، ہمیں آپس میں مل جل کے اس ہندوستان ملک میں رہنا ہے۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ جان پہچان، بیکل اسائی کا اصل نام لودھی محمد شفیع خان تھا۔ وہ یکم جون 1928 کو موضوع گورموہا پور، ضلع گونڈی، یو پی میں پیدا ہوئے۔ جیسے یہ جو ہمارے جو شاعر ہے بیکل اسائی، ان کا اصلی نام لودھی محمد شفیع خان تھا۔ وہ یکم جون 1928 کو گورا پور، ضلع گونڈ میں، یو پی میں پیدا ہوئے۔ ہندوستان ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز اسی گاؤں کے مدرسے ہو، جیسے یو پی میں ان کا ان کی پیدائش ہوئی، یہیں پہ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ بلرام پور ریاست کے کالج میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ بلرام پور میں انہوں نے پوری اپنی تعلیم، جیسے ہم میٹرک کرتے، میٹرک کے بعد انٹر سے ہم گریجویشن کی پوزیشن حاصل کرتے۔ 1976 میں راجیہ سبھا کے ممبر نامزد کیے گئے۔ جیسے 1976 میں راجیہ سبھا کے ممبر نامزد کیے گئے۔ جیسے جب ہمارا بھارت ملک انگریزوں نے ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیا تھا، تو جیسے ہمارے بھارت ملک کو آزادی ملی تو راجیہ سبھا میں ان کا نام آ گیا۔ بیکل اسائی نے اردو ہندی الفاظ کے حسین امتزاج سے اپنے گیتوں کو سنوارا، قومی یکجہتی کے جذبات کو بھی ابھارا۔ وہ مشاورے کے مقبول شاعر تھے۔ امیر خسرو، نذیر اکبر آبادی کی طرح ان کی شاعری بھی عوامی تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ نشاط زندگی، نغمہ ترنم، پرایہ رنگ، ہزاروں خوشبو ایک ان کے شعری مجموعے ہیں۔ 3 ستمبر 2016 کو دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی ہمارے جو شاعر ہیں، انہوں نے اپنی جیسے یو پی میں پیدا ہوئے، یو پی میں ان کی تعلیم انہوں نے اپنا مدرسہ، انہوں نے اپنے مدرسے میں داخلہ کرا دیا، پھر وہیں پہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا، پھر وہاں پہ انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کی۔ پھر 1976 میں انہیں راجیہ سبھا کے ممبر سے نامزد کر دیا گیا۔ اسی طرح سے انہوں نے اردو ہندی میں گیتیں اور نظمیں لکھنا شروع کر دی، مشہور شاعروں میں سے ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے جیسے ان کی جو نغمہ ترنم، پرایہ رنگ ان کی مشہور شاعری مجموعے ہیں۔ ان کا 3 دسمبر 2016 میں ان کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے۔ تو آئیے ہم اپنی نظم کی شروعات کرتے ہیں۔ خلوص دل میں لیے کارواں کے ساتھ چلو، مسافر چلو عزم گراں کے ساتھ چلو۔ ابھی شاعر پہلی لائن میں ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے کہ جیسے ہم ہندوستان ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ملک میں طرح طرح کے مذہب کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کی زبانیں الگ ہیں، ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کا خدا الگ ہے، ان کا کھانا پینا، پہنا اوڑھا بالکل مختلف ہے۔ لیکن ہمیں بالکل فرق نہیں دکھانا کہ ہم ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ، عیسائی ہیں، جین ہیں، بدھزم ہیں۔ ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا ہے۔ ہمیں یہ برے کاموں سے، چوری، جھگڑا، یہ گالی گلوچ، ہم ان سب چیزوں سے ہمیں دور ہونا ہے۔ ہمیں آپس میں مل جل کے بھائی بھائی بن کے رہنا ہے۔ زمانہ ساتھ چلے، انجمن بھی ساتھ چلے،
बाहर चूम कर ज़माना साथ चले, अंजुमन भी साथ चले, बाहर चूमे कदम बागपन भी साथ चले। जैसे अगर हम हमारी कौम में यकजहती का पैगाम हमें पहुंचाना है, हमें बिल्कुल किसी भी जात पात को लेके, मज़हब को लेके, ज़बान को लेके, हमारे कपड़े को लेके, किसी भी चीज़ को हमें बिल्कुल झगड़ा नहीं करना है। मज़हब को लेके, खुदा को लेके हमें ऐसा चलना है। हमें हमारे कौम को लेके ऐसा चलना है कि जैसे बाहर में कैसे हमारे जैसे बाग में कैसे खिल रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, हमें हमारी कौम को ऐसी बनाना है। हमें यकजहती के साथ इस कौम में ज़िंदगी गुजारनी है। वो अज़म हो कि जिसे ज़िंदगी सलाम करे, कदम कदम पे सुकून जश्न एहतमाम करे, कि ताकि दूसरे के लोग भी देखें कि क्या मुल्क है, कि यहाँ पे किसी चीज़ का कोई भेदभाव नहीं। भले इस मुल्क में तरह तरह के मज़हब के मानने वाले होते हैं, तरह तरह की ज़बानें बोली जाती, लेकिन इनमें कोई भी इनके अंदर कोई भी ज़रा नफ़रत नहीं है, झगड़े नहीं है। सब आपस में रहते हैं, सब एकता में रहते हैं। वतन की लाज बनो, कौम का निखार बनो, हर एक दिल के लिए एहसान एतबार बनो। मतलब हमें अपनी वतन की खातिर, अगर हमारे बीच कोई आपसी कोई झगड़ा भी हो जाता है या कोई अनबन भी हो जाती है, उतार चढ़ाव भी हो जाता है, तो हमें हमें ये जो हमें अपनी जो भी है, जो भी बातें, कोई भी अनबन है, कोई भी उतार चढ़ाव, हमें उसे छुपाए रखना है। हमें उसे दुनिया दूसरे मुल्कों को नहीं बताना है, क्योंकि ये हमारी वतन की लाज है। अगर कोई दूसरे मुल्क का आएगा, जैसे अमेरिका या रशिया वाला, या दूसरे मुल्क का कोई भी आएगा, जापान वाला, अमेरिका वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला, अफ्रीका वाला, कोई भी आएगा, तो वो क्या कहेगा कि हम हिंदुस्तान मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने अपने वतन की लाज भी नहीं रखी। लोग क्या कहेंगे, हम आपस में रह के इस मुल्क में रह के भी हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। भला दो फ़िरका परस्ती की दास्तानों को मिटा दो, बढ़ के तासुब भरे जहानों को। हमें क्या करना है, हमें कोई भी दो फ़िरका नहीं बनाना है। हमें भले हमारा खुदा अलग है, भले हमारा मज़हब और हमारी ज़बान अलग है, लेकिन हमें एकता के साथ रहना, हमें आपस में मिलजुल कर रहना है, हमें कोई भी फ़र्क भेदभाव नहीं करना है। कसम वतन की तुम्हें एकता के गुन गाओ, दिलों में अजमत कौम वतन को चमकाओ। मतलब तुम्हें हमारे शायर की एक ये लाइन में क्या कहना चाहता, तुम्हें हमारे वतन की कसम है, तुम कोई भी कदम उठाने से पहले ये बात सुन लो कि तुम हिंदुस्तान मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो। अगर तुम किसी को भी बुरा भला करोगे, किसी के साथ भी जंग करोगे, तो दूसरे वाले मुल्क जैसे जो अमेरिका है, जापान है, चाइना है, अब साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तरह तरह के जो मुल्क हैं, वो क्या कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी सब। हमें मज़हब को, हम भले हमारा खुदा, हमारे मज़हब अलग है और हमारा रहन सहन भी अलग है, लेकिन हमें सबसे पहले हम हिंदुस्तानी कहलाते हैं। तो हमें अपने वतन के खातिर इन छोटी मोटी झगड़ों को, हमारे जो इत्तेहाद पसंद, हमारे जो आपसी मामला है, उसको लेके हमें झगड़ा नहीं करना। हमें सबसे पहले वतन की लाज रखनी कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तान मुल्क में यकजहती के साथ रहना है। कदम के साथ अगर दिल मिले तो बात बने, जहाँ भी चाहो वही मंजिल मंजिल हयात बने। यहाँ पे शायर यहीं पे कहना चाहता है ये लाइन में, कि हमें कदम में, हर कदम में साथ में चला जाए। वतन में हमारी किसी तरह की भी मुसीबत आए, चाहे खुशी का माहौल हो या गम का माहौल है, हमें अपने हम अपने अपने लोगों के साथ ही साथ चलना है। ऐसा नहीं कि अगर दूसरा मज़हब का रहने वाला परेशान है, अगर हिंदू परेशान है, मुसलमान परेशान है, सिख परेशान है, पंजाबी परेशान है, बुद्धिज़्म जैन परेशान है, तो हमें एक दूसरे को लिए नफ़रत नहीं फैलाना है, हमें एक दूसरे के लिए मोहब्बत फैलाना है। हमें हर कदम में उनका साथ देना है। सबसे पहले हमें मज़हब को भुला देना है, सबसे पहले हमें इंसानियत का रिश्ता रखना है, कि हम सबसे पहले इंसान हैं, हम हिंदुस्तान मुल्क में रहते हैं, हम एक ही कौम के हैं, तो हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना है। आखिरी लाइन में शायद ये कहना चाहता है, हो एक दिल ज़रा आवाज़ भी मिला के चलो, चलो तो राय आवाज़ से मुस्कुरा के चलो। शायद आखिरी लाइन में ये कहना चाहता है, हो एक दिल ज़रा आवाज़ भी मिला के चलो, चलो तो राय हवादत में मुस्कुरा के चलो। चाहे कैसे भी हमारे मुल्क का हाल हो, चाहे हमारे मुल्क में गरीबी हो का आलम छाया हो, या परेशानी का आलम छाया हो, या खुशी का माहौल है, हमें एक साथ आवाज़ उठानी है। हमें ऐसा नहीं कि सामने वाला, अगर ये मज़हब का रहन मानने वाला, जैसे हिंदू परेशान है तो मुसलमान को खुशियाँ मनानी चाहिए, अगर ईसाई परेशान है तो पंजाबी को खुशी मनाना चाहिए। ये सब गलत बात है। इन सब चीज़ों को हमें
नहीं देखना चाहिए। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे मज़हब से पहले हम इंसान हैं, हमारे बीच एक इंसानियत का रिश्ता होना चाहिए कि हमें एक दूसरे की हर हाल में मुसीबत में, परेशानी में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चाहे हमारे वतन की हालात अच्छे हो या बुरे हो, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आइए हम खुलासे पे हम नज़र डालेंगे। खुलासा: हमारा मुल्क हिंदुस्तान मुख्तलिफ रंगों के नस्ल के लोगों, ज़बान और मज़हब का मालिक है। शायर मुल्क की तरक्की, खुशहाली, खुलूस मोहब्बत, अमन सुकून, आपसी मेल जोल, कौम वतन की अजमत के लिए तासुब और फ़िरका पस्ती से दूर रहने का मशवरा देता है। शायर ये हमारे नज़म में यही कहना चाहता है कि हमें एकता के साथ इस हमारे हिंदुस्तान मुल्क में ज़िंदगी गुजारनी है। चाहे हमारा रंग में फ़र्क हो या ज़बान में फ़र्क हो, मज़हब में फ़र्क में, हमें ये आपसी झगड़े, झूठ, तनाव, इन सब चीज़ों से दूर के खुलूस और मोहब्बत, अमन सुकून से हमें हिंदुस्तान मुल्क में ज़िंदगी गुजारना है। वो कहता है, माजी का पुरानी फ़िरका परस्ती दास्तानों को भुलाकर हम सबको आवाज़ से आवाज़, कदम से कदम, दिल से दिल मिलाकर चलना होगा। जैसे आपसी हमारे कोई भी झगड़े हो, कोई भी नोक-झोंक हो, कोई भी उतार-चढ़ाव, हमें इन सब पुरानी बातों को भूल के हमें साथ ही साथ एक दूसरे से कदम मिला के, दिल से दिल मिला के चलना चाहिए। उसी से उम्मीद है कि इस तरह राह में आने वाली हर मुसीबत आप हट जाएगी, मुल्क तेज़ी से तरक्की करेगा। अगर हम चीज़ों को, नफ़रतों को भुला दोगे तो हमारा जो हिंदुस्तान मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाएगा। हमारे जो दुश्मन हैं, दूसरी मुल्क के रहने वाले लोग देखते रह जाएंगे, क्या मुल्क है ये, क्या भले इस मुल्क में भले हर मज़हब के मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले रुकते, मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती है, इनका रहन सहन, पहनाव ओढ़ाव बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी इनमें क्या यकजहती है, क्या एकता है। तो शायद हमें यही पैगाम पहुंचाना चाहता है, एकता की आवाज़ से हमें यही पैगाम देना चाहता है, भले हम किसी भी मुल्क में रहते हो, हमें आपस में मिलजुल के रहना है, हमें खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी, चाहे हमारे मुल्क के हाथ कैसे भी हो, हमें हर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आइए इस नज़म के ज़रा मायने देख लीजिए। एकता, मेल जोल, अज़्म गुरा पक्का इरादा, हुस्ने एतबार, भरोसे भरोसे की खूबी, दिल मिलना, मेल जोल बढ़ना, एक दिल में होना, मेल जोल होना। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है यह नज़म एकता की आवाज़ आपको बेहद पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।